Living things require oxygen for respiration. That means living things obtain energy from food through the process of respiration, for which they require oxygen. They take oxygen through different organs such as gills, spiracles, lungs, moist skins, etc. जीवित प्राणी को अपने खाने से ऊर्जा लेने के लिए ऑक्सीजन की सहायता लेनी पड़ती है। यह ऑक्सीजन उनके शरीर में कई ग्रंथियों द्वारा पहुंचते हैं, जैसे कि लंग्स, गिल्स, स्पाइरकल्स, मॉइस्ट स्किन इत्यादि। Let us discuss the first breathing organ, skin. The form of respiration in which gas exchange occurs across the skin of an organism rather than gills or lungs is called cutaneous respiration. This type of respiration occurs in a wide variety of organisms including insect, amphibian, fish, sea snakes, turtles and to a lesser extent in mammals. Animals like earthworm take in oxygen present in soil through their moist skin, which helps in exchange of gases. Most fish respire through gills, but cutaneous respiration may account for 5 to 40% of the total respiration. Mud, skipper and redfish, which have 50% cutaneous respiration. Cutaneous respiration, the sole respiration made of a lungless salamander. Cutaneous respiration in frogs and other amphibians may be the primary respiration mode during colder temperature. Gas exchange in cutaneous respiration is controlled by three factors: ventilation, the rate of delivery of respiratory medium to the respiratory surface; diffusion, the passage of gases through the skin; convection, the carrying of dissolved gases toward or away from the lungs. जीवों में मौजूद अनेक प्रकार की श्वास ग्रंथियों में से सबसे पहले हम लोग त्वचा का बात करते हैं। वो जीव जो कि अपने त्वचा के माध्यम से अनेक प्रकार की गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और उनमें लंग्स, गिल्स नामक कोई ग्रंथियां नहीं होती है, केवल वो गीली त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। तो ऐसे श्वासन प्रक्रिया को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऐसे जीव जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कई प्रकार के कीड़े, एम्फीबियंस, मछलियां, समुद्र में रहने वाली सांपें, कछुए और कुछ मामलों में मैमल्स भी इसमें शामिल हैं। केचुए मिट्टी में मौजूद हवा से अपनी गीली त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। वो अपनी गीली त्वचा से ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ज़्यादातर जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गिल से सांस लेती हैं, पर कुछ मायनों में वो अपने त्वचा से भी सांस लेती हैं। उनके त्वचा से सांस लेने का जो प्रतिशत होता है वो 5 से लेकर 40% तक हो सकता है। मड स्कीपर और रेडफिश नामक दो मछलियाँ जो हैं वो अपने त्वचा से लगभग 50% सांस लेती हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने वाले सैलमेंडर पूरी तरीके से त्वचा से ही सांस लेते हैं। कुछ मेढक और एम्फीबियन भी जो है त्वचा से सांस लेने में माहिर हो जाते हैं जब ठंड का मौसम पड़ता है। त्वचा के द्वारा सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो 3 कारणों से प्रभावित होती है। पहला वेंटिलेशन, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा कन्वेक्शन। वेंटिलेशन का मतलब होता है जिस दर से हवा जो है उनके पूरे शरीर पर फैलती है। दूसरा डिफ्यूजन यानी फैलाव, गैसेस का पूरे त्वचा पर किस प्रकार से फैलाव हो रहा है। तीसरा कन्वेक्शन यानी संवहन, किस प्रकार से घुली हुई हवाएं जो हैं पूरे के पूरे त्वचा में फैल रही हैं। Let us talk about the second respiratory organ, that is lungs. Lungs is the respiratory organ in most of the mammal, reptiles and birds. Air from the atmosphere enters into the lungs through the nostril, where it is filtered by mucus, air and heated up to body temperature by blood vessel in the nostril. From nostril, air enters into the food pipe, where it gets divided into two parts. Bronchi enter into right and left lungs, where it gets subdivided into still smaller pipe called bronchioles, and ultimately into the sac-like structure called alveoli. In the alveoli, air comes in contact with the blood, where exchange of gases takes place. श्वसन प्रक्रिया का दूसरा ग्रंथि जो है लंग्स है। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हर एक मैमल्स, सरीसृपों और पंछियों में पाया जाता है। हवाएं जो हैं हमारे लंग्स में नाकों के सहायता से जाती है। नाकों में मौजूद म्यूकस और हेयर
इन हवाओं को छान लेते हैं ताकि इसमें धूल के कण ना रहें, और इसे शरीर के तापमान तक गर्म कर देते हैं ताकि ये आसानी से कार्य कर सके। नाकों से होते हुए ये हवाएं जो हैं फूड पाइप में जाती हैं। फूड पाइप इन्हें दो भागों में बांट देते हैं जिनको ब्रोंचियोलस कहते हैं। वो दाएं और बाएं लंग्स में चली जाती हैं जहाँ पे वो पुनः विभाजित होती हैं छोटे छोटे पाइप में जिनको ब्रोंचियोलस कहा जाता है। ये ब्रोंचियोलस पुनः विभाजित हो जाते हैं बूढ़े की आकृति में जिसे एल्वियोली कहा जाता है। यह एल्वियोली है जहाँ पर रक्त के साथ हवा का सामना होता है और वहीं पर गैसेस का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से हवा में चली जाती है और ऑक्सीजन जो है कि रक्त में चली जाती है। Let us now talk about the third breathing organ, that is spiracles. Spiracle is the opening in the exoskeleton of a insect and a spider to allow air to enter the trachea. The tracheal tubes primarily deliver oxygen and directly into the animal tissue. The spiracle can be opened and closed in an efficient manner to reduce water loss. Insects like flies, mosquito and butterflies breathe through the air holes, i.e. spiracle. Air enters and leaves the insect body through the spiracle. आइए हम लोग अब तीसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं जो कि सांस लेने के लिए मौजूद होती है। इसका नाम है स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल एक छोटा सा छेद होता है जो कि अनेक प्रकार के कीड़ों में और मकड़ियों में पाया जाता है, जो कि उनके बाहरी खोल या कवच में मौजूद होता है, जिसके द्वारा हवाएं जो हैं ट्रेचिया के सहायता शरीर के अंदर जाती हैं। ट्रेचिया का जो पाइप होता है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन का प्रदान पूरे के पूरे त्वचा में उस जानवर की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ये जो स्पाइरेकल्स है ये खुलता या बंद होता है एक खास प्रकार के ग्रंथि के द्वारा, जो कि उसके पानी के कमी या फिर बाहुबल को नियंत्रित करती है। ये जो ग्रंथि है वो आमतौर पर मक्खियों में, मच्छरों में और तितलियों में पाया जाता है, जिसके सहायता से ये जीव सांस लेते हैं स्पाइरेकल में मौजूद छोटे छोटे छेदों से। हवाएं जो हैं या तो इन्हीं छेदों के माध्यम से अंदर या बाहर जाती हैं। इन्हीं छेदों का नाम हम स्पाइरेकल्स के रूप में जानते हैं। Let us talk about the fourth breathing organ, that is the body surface. Very small organism breathe through the body surface. Example, amoeba, paramecium. In amoeba, respiration takes place through its cell membrane. Amoeba gets oxygen gas dissolved in surrounding water through its cell membrane by the process of diffusion. Similarly, carbon dioxide gets out of the body through diffusion. अब हम लोग चौथे श्वसन प्रक्रिया के लिए मौजूद ग्रंथि की बात करते हैं, जो कि पूरे के पूरे शारीरिक सतहें हैं। बहुत छोटे जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम ये अपनी शरीर की सतह से सांस लेते हैं। अमीबा जो है अपने कोशिका के बाहरी त्वचा से उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजन की सहायता से अंदर आता है और बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड उसके शरीर के बाहर डिफ्यूजन के सहायता से बाहर चला जाता है। इस तरीके से कुल जो प्रक्रिया है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। और अमीबा जो है जल में रहने वाला जीव है, इसलिए वो खुले हुए ऑक्सीजन को ही अपने त्वचा के माध्यम से शरीर के अंदर मौजूद करवा लेता है। उनकी जो सतह होती है जिसको सीडोपोडिया या फॉल्स लेग भी कहा जाता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कुछ ही चीज़ों को शरीर के अंदर या शरीर के बाहर जाने देती है। और पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन का कमी जब भी उसके शरीर के अंदर होता है तो आसानी से डिफ्यूजन के माध्यम से ये घुला हुआ ऑक्सीजन उसके शरीर में चला जाता है। अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके शरीर में डिफ्यूजन के ही माध्यम से सेमी परमिएबल के जरिए उसके शरीर से बाहर जाती है। The fifth respiratory organ is the gills. A gill is a respiratory organ found in many aquatic organisms that extract dissolved oxygen from water and excrete carbon dioxide. Gills usually consist of thin filament of tissue, plates, branches that have a highly folded surface to increase the surface area. The blood vessel is in contact with these
surface and gases exchange occurs through diffusion. Usually water is moved across the gills in one direction by the current by the motion of the animal through the water. The dissolved oxygen content is 80 cubic per liter compared to that of air, which is 210 centimeter cube per liter. Oxygen has a diffusion rate in air 10,000 times greater than in water. श्वासन की प्रक्रिया के लिए पांचवा जो ग्रंथि है उसे गिल्स के नाम से जाना जाता है। गिल्स एक ऐसा श्वासन प्रक्रिया करने वाला ग्रंथि है जो कि ज़्यादातर जलीय जीव में या मछलियों में पाया जाता है। ये पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को हटाता है और सोख कर पूरे जीव के शरीर में पहुंचाता है। साथ ही साथ शरीर के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया करता है। गिल्स जो होते हैं उनमें बहुत पतले पतले तंतुएं होती हैं जो कि ऊतकों से बने होते हैं। इसमें थाली के आकार के कई सारी शाखाएं होती हैं जो कि कई मुड़े हुए रूप में पूरे सतह पर बिखरे हुए रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। इन जीवों के शरीर में जो नसें होती हैं वो इस ग्रंथि से संपर्क में होती हैं। इस कारण से जो खून होता है वो इस ग्रंथि के संपर्क में आने से उनमें गैसेस का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन उसके अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रंथियों के माध्यम से शरीर के बाहर चली जाती है। पानी जो होता है वो जलीय जीव के मुंह में चला जाता है और उसे गिल्स की सहायता से छोड़ा जाता है। अधिकतर जो पानी होता है वो एक ही दिशा में बहता रहता है। वो इन जलीय जीवों के चाल पर निर्भर करता है और जब ये ऐसा करते हैं तो पिए गए पानी को गिल्स से छोड़ने के वक्त वो उनमें घुले हुए ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। ये काम गिल्स का होता है और अपने शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को वो पानी में ही खोल देते हैं ताकि वो शरीर से बाहर चला जाए। पूरे के पूरे पानी में ऑक्सीजन का जो घुलनशीलता है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर है, जबकि हवा में ऑक्सीजन की घुलनशीलता 210 सेंटीमीटर क्यूब प्रत्येक लीटर होती है। यानी हवा में ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है पानी के मुकाबले। ऑक्सीजन का जो फैलने का दर जो है वो हवा से पानी के मुकाबले 10,000 गुना होता है। यानी हवा में ऑक्सीजन 10,000 गुना ज़्यादा फैलता है पानी के कंपैरिजन में। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट। Adaptation for movement. Movement in an animal is a vital activity. Animals move in search of food, escape from enemies in search of mates and shelter. Their movement can be of a short distance or to long journey, and sometimes mass movement is also seen in animals. अब हम लोग जीवों के चलने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। जीवों का जो चलना है वो बहुत ही जरूरी गतिविधि है। जानवर जो है कि किसी भी तरीके से चलता है ताकि वो खाना खोज सके, अपने दुश्मनों से बच सके या अपना साथी या फिर रहने के लिए निवास स्थान ढूंढ पाए, खोज सके। चलने की जो प्रक्रिया है वो छोटा यात्रा भी हो सकता है या फिर कभी कभी बहुत लंबी दूरी बहुत बड़े समुदाय के साथ में किया भी जाता है। मूवमेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाइट इज द प्राइमरी मोड ऑफ लोकोमोशन यूज्ड बाय मोस्ट बर्ड स्पीशीज इन विच बर्ड्स टेक ऑफ एंड फ्लाई। फ्लाइट असिस्ट विद फीडिंग, ब्रीडिंग, avoiding predators and migrating. Flight includes hovering, taking off and landing. Birds have lightweight feathers and strong muscles that help them to fly, which are called flight muscles. अब हम लोग पंछियों के चाल के बारे में जिक्र करेंगे। पंछियों का जो उड़ना है वो मुख्य कार्य है जो कि उनके चाल में शामिल है। जो ज़्यादातर पंछियाँ का प्रजाति इस्तेमाल करता है, जिसमें पंछियाँ जो हैं वो ज़मीन से होते हुए हवा में उड़ती हैं और हवा में बड़ी बड़ी उड़ान भरती हैं। पंछियों का जो उड़ना है वो कई चीज़ों के सहयोग में मदद करता है, जैसे कि खाने की खोज में, नए बच्चों को जन्म देने में और अपने दुश्मनों से बच निकलने में, एवं बड़े बड़े प्रवास करने के लिए भी उड़ान बहुत ज़रूरी होती है। जो उड़ान है उसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि मंडराना, उड़ना,
या फिर जमीन पर उतरना। पंछियों के पास बहुत ही हल्के पंख होते हैं और बहुत मजबूत मांसपेशियां होती हैं जो कि उनका सहायता करती हैं उड़ने में। इसी मांसपेशियों को फ्लाइट मसल्स भी कहा जाता है। Now we will talk about the second type of movement, that is movement in reptiles. Sprawling posture is the most primitive and is the original limb posture from which other evolved. Upper limbs are held horizontal while the lower limbs are vertical and the body may drag along the ground as in the salamander, monitor, lizards, reptiles, platypus, frogs, mud skipper and other amphibians fish. Crocodiles and lizards have short legs that help them to move. Most snakes move using lateral undulation, where a lateral wave travels down the snake's body in the opposite direction to the snake's motion and pushes the snake off irregularities in the ground. Another form of locomotion is rectilinear locomotion, as in the pythons and boa. Here, large scale on the underside of the body known as scutes are used to push backward and downward. This is effective on a flat surface and is used for slow silent movement such as when stalking prey. Another type of movement is side bending. This type of movement is found in rattlesnake in deserts. अब हम दूसरे चाल के बारे में बात करते हैं जो कि सरीसृपों में और रेंगने वाले जीवों में पाया जाता है। स्प्रॉलिंग यानी लोटना एक ऐसा आसन है जो कि ज़्यादातर प्राचीन जीवों में पाया जाता है और ये सबसे पहला विकसित किया गया चलने का आसन है जिससे अन्य चलने की प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं। ऐसे चलने की गतिविधि में ऊपरी टांगों को क्षैतिय धारण किया जाता है जबकि पिछली टांगों को सीधा खड़ा रखा जाता है ताकि पूरा का पूरा शरीर को खींचा जा सके। जैसा कि हम सैलामेंडर, मोनिटर, छिपकलियाँ, कई प्रकार के सरीसृपों में, प्लेटिपस में, मेढकों में और एम्फीबियन मछलियाँ यानी स्कीपर में पाते हैं। मगरमच्छ और छिपकलियों के पास छोटे पैर होते हैं जो कि उनके चलने में सहायता करते हैं। ज़्यादातर जो सांपे होते हैं वो अमुख्य उतार चढ़ाव का प्रयोग करते हैं। ये जो आंतरिक तरंगे होती हैं वो उनके शरीर में पीछे की तरफ बढ़ती रहती हैं, यानी जिस दिशा में वो बढ़ते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में ये तरंगे बढ़ती हैं, जिसके कारण से शरीर जो है आगे की तरफ बढ़ता रहता है। कुछ सांपे जो होते हैं वो एकदम सीधे चल सकते हैं। ऐसे सीधे चलने की प्रक्रिया को रेक्टिलिनियर लोकोमोशन कहा जाता है। ये पाइथन और बोआ जैसे सांपों में पाया जाता है। उनके शरीर के अंदरूनी भागों में स्केल्स होता है जो कि स्क्यूट्स के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण से पाइथन या बोआ का शरीर जो है आगे की तरफ ढकेला जा सकता है। इतना ही नहीं, ये बहुत ही सफल तरीका है सपाट भूमि पे चलने का। ज़्यादातर ये जो चाल है बहुत ही धीमा होता है और एकदम से खामोशी भरा चाल होता है। खास करके ये शिकार को पकड़ने के समय ऐसा चाल ये सांपे करते हैं। Now we will talk about the third type of movement, that is movement in insect. The most diverse group of animals on earth are insects and they are called hexapods, as most of them are hexapedal, walking and standing on 6 legs. Most insects are 6-legged with wings which helps to fly. Some are wingless and some swim in water by using legs as oars, water boatmen. Some insects like grasshopper hop with the help of their hind legs. Praying mantis are quadrupeds with upper 2 legs modified for grasping butterflies. Some larvae have no legs like maggots. Spiders are octapedal. Woodlice
have 14 legs, caterpillar have 5 legs, centipedes have 50 legs, millipedes have 80 to 400 legs. Animal with many legs move in metachronal rhythm which keeps wave motion traveling forward along their rows of legs. पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी संख्या में जो जीव हैं वो उनका नाम कीड़े हैं, जो कि पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ज़्यादातर कीड़ों को हेक्सापॉड्स कहा जाता है क्योंकि वो हेक्सापेडल होते हैं, यानी चलते या खड़े रहते हैं 6 पैरों पर। ज़्यादातर जो कीड़े होते हैं 6 पैरों वाले होते हैं, साथ ही साथ उनके 2 पंख होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। कुछ कीड़े जो है कि बिना पंखों वाले भी होते हैं, जैसे कि चींटियाँ, और कुछ पानी पर तैर सकते हैं अपने पैरों की सहायता से, जैसे कि ओर्स, वाटर बोटमैन। कुछ कीड़े जो होते हैं जैसे कि टिड्डे, वो बड़ी बड़ी छलांगे मार सकते हैं अपने पिछले पैरों के द्वारा। शिकार करने वाले जो मैंटिस होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं। उनके आगे के जो 2 पैर होते हैं वो विकसित हो चुके हैं किसी भी तितलियों को पकड़ने के लिए। कुछ कीड़े के जो बच्चे होते हैं उनके पास पैर नहीं होता है, जैसे कि मक्खियों के बच्चे जिनको मैगिट्स कहा जाता है, उनके पैर नहीं होते हैं। मकड़ियों के पास 8 पैर होते हैं, इसलिए उनको ऑक्टोपेडल कहा जाता है। लकड़ियों में पाए जाने वाले दीमक के 14 यानी कि 14 पैर होते हैं। कैटरपिलर यानी भुआ पिल्लू के 5 पैर होते हैं। सेंटीपीड्स यानी कनखजूरे के 50 पैर होते हैं। मिलीपीड्स के 80 से 400 पैर हो सकते हैं। जो जानवर जिनके पास बहुत सारे पैर होते हैं वो खास प्रकार के तरंगनुमा चाल में चलते हैं, जिनमें उनके कतारबद्ध पैर जो है एक तरंग की तरह आगे की ओर चाल करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स। Terrestrial locomotion has evolved as animals adapted from aquatic to terrestrial. Locomotion on land raises different problems than that in water, with reduced friction being replaced by the effect of gravity. There are 3 basic forms of animal locomotion in the terrestrial environment. First, legged, moving by using appendage. Second, limbless locomotion, moving without legs, primarily using the body itself as a propulsion structure. Third, rolling, rotating the body over the substrate. Most of the animals living on land walk with the help of their limbs. The front 2 are called forelimbs and the 2 at the back are called hind limbs. Frogs and kangaroo are leaper, snail and slugs have a large single foot on which they glide. अब हम लोग बात करेंगे मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स, यानी जमीन पर रहने वाले जीवों में जो चाल है उसका। जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं उनका जो चाल है वो पानी में रहने वाले जीवों से विकसित हुआ है। जमीन पर रहने वाले जीवों का जो चाल है वो पानी पर रहने वाले जीवों से काफ़ी अंतर है, क्योंकि पानी में पानी का ज़्यादा घर्षण होता है जबकि हवा में मौजूद जीवों पर कम घर्षण होता है। और हवा में मौजूद जीवों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का ज़्यादा असर होता है, जबकि पानी पर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर कम होता है। 3 प्रकार का चाल है जो कि जमीन पर पाया जाता है। पहला, पैरों वाले चाल, जो अधिकतर जानवरों के पैरों की सहायता से चलने की विधि की जाती है। दूसरा, बिना पैरों वाला चाल, जिसमें जितने भी जीव होते हैं उनके पास पैर नहीं होते हैं और वो बिना पैरों के ज़मीन पर घिसटते हैं, जैसे कि सांपों में और कई सारे रेंगने वाले जीवों में। तीसरा, रोलिंग, इसमें अपने शरीर को गोल आकार में बदल दिया जाता है, रूपांतरित किया जाता है और ज़मीन पर ढलानों पर या सपाट जमीन पर घूर्णन किया जाता है। घूर्णन प्रक्रिया कई सारे कीड़ों में, खास करके भुआ पिल्लू, कैटरपिलर में पाया जाता है और पैनियोलिन नामक प्राणी में भी पाया जाता है। जमीन पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो अगले और पिछले पैरों द्वारा, जिनको हाइंड लिम्स ऑफ
फोर लिम्स भी कहा जाता है, उनकी सहायता से चलते और दौड़ते हैं। मेढक और कंगारू बड़ी बड़ी छलांगे मारते हैं। स्नेक और स्लग्स जो होते हैं उनकी एक बड़ी सी पैर होती है जिसके माध्यम से वो एक रसायन निकालते हैं और उसी पे वो फिसलते रहते हैं। The fifth type of movement is the movement in aquatic animals. Aquatic locomotion is biologically propelled motion through the liquid. Simple propulsion systems are composed of cilia and flagella. Swimming has evolved a number of time ago in fish like arthropods, fish, reptiles, birds, and mammals. Many fish swim through water by creating undulation with their bodies or oscillating their fins and a tail that helps it to change its direction. An unpaired fin helps the fish to maintain its balance. Dolphins, whales, all mammals have flippers for smooth swimming. Turtles, seals, penguins have flippers to swim through water. They have paddle-like limbs and tail which they use to push back वाटर एंड स्विम। आगे हम लोग पांचवें चाल यानी वह चाल जो कि समुद्री जीवों में पाई जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो समुद्री जीव होते हैं वो प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ने की चाल पानी में करते हैं या फिर किसी भी तरल पदार्थ में करते हैं। ऐसी गतिविधियों को एक्वेटिक लोकोमोशन कहा जाता है। साधारण जीवों में ये पानी में चाल करने की जो गतिविधि है वो सीलिया और फ्लैजेला के माध्यम से पूरी की जाती है। तैरने की प्रक्रिया जो है बहुत साल पहले ही विकसित हो चुकी थी मछलियों में, आर्थ्रोपॉड्स में, रेप्टाइल्स में, पंछियों में और कई सारे मैमल्स में। ज़्यादातर जो मछलियाँ वो तैरती हैं वो अपने शरीर के द्वारा तरंग उत्पन्न करती हैं या अपने शरीर के ऊपर पड़ों द्वारा एक दोलन की चाल उत्पन्न करती हैं। मछलियाँ जो हैं वो दो जोड़े पड़ों द्वारा तैरती हैं। साथ ही साथ एक पूंछ होता है जो कि दिशा बदलने में सहायक होता है और एक बिना जोड़े वाला पड़ होता है जो कि पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। डॉल्फिन, वेल्स या अन्य सभी मैमल्स के पास चप्पू की तरह फ्लिपर्स होते हैं जो उन्हें बहुत ही सहज रूप से तैरने में सहायक होता है। कछुए, सील्स, पेंगुइन्स के पास भी चप्पू की आकार की फ्लिपर्स होती है जो उनके तैरने में मदद करती है और उनके पास पैरों का जोड़ा भी होता है और पूंछ होते हैं जो कि उन्हें आगे पीछे सभी तरफ तैरने में सहायक होते हैं। ऑक्टोपस, स्क्विड्स और कटलफिश ये पानी को अपने मुंह में तेजी से भर लेते हैं और उसे बहुत दबाव के साथ बाहर की ओर छोड़ते हैं जिसके कारण से वो तेजी से पीछे की तरफ चाल करने में कुशल होते हैं और ये जानवर जो हैं आगे की ओर भी चाल कर सकते हैं। मेढक और बतखों में एक जाल की तरह पैरें होती हैं जो कि तैरने में उनकी सहायक होती हैं। The movement of a human is a complex process. In human, movement occur by rhythmic falling, which is balanced by formal step legs. When the lateral leg push the ground backward, then ground push it forward. The forward falling motion is balanced by formal leg, and this process continues in human. The distance between two legs in walking is called step, and the distance between two legs in running is called stride. Various activity in human beings related to legs are standing, walking, running, etc. Their hands and fingers help in movement, grasping and controlling devices. इंसानों में चलने की प्रक्रिया सबसे जटिल होती है। एक इंसान में लगातार गिरने की ही प्रक्रिया को चलना कहलाता है जो कि उनके आगे की टांगों द्वारा संतुलित किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है तो वो जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है और जमीन उसे आगे की ओर धक्का देती है। इससे क्या होता है कि वो गिरने लगता है और गिरने की जो प्रक्रिया है वो आगे की टांगों द्वारा संतुलित की जाती है और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। चलने के दौरान एक इंसान की
जो दो पैरों के बीच की दूरी है उसे स्टेप कहा जाता है, जबकि दौड़ने के दौरान उसके दो पैरों के बीच की दूरी को स्ट्राइड कहा जाता है। हम पैरों के माध्यम से कई सारी गतिविधियां करते हैं, जैसे कि खड़े रहना, चलना या दौड़ना। हमारे हाथ और उंगलियों द्वारा कई प्रकार की चाल चली जाती हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने का और चीज़ों को नियंत्रण करने की एक कुशल प्रक्रिया हम इंसानों में पाया जाता है। Now we will talk about migration. Migration is the traveling of long distance in search of a new habitat. Due to seasonal change, animals move over long distance. The reason for migration is due to local climate, local availability of food, or the season of the year. Migration happens when animals move on a regular cycle. Example, caribou in the Arctic go south in winter and return in summer. Salmon leave the river after their birth when they have reached to few inches in size. Salmon to lay their eggs in river, they migrate from sea to the river. Plankton go up for the day where there is light and down at night where they are less easy to find. Many predators follow them. During winter, Siberian cranes or white cranes migrate to India. Whales migrate from polar region to warmer ocean during winter. Monarch migrate from Canada to Mexico during winter. Arctic tern is the longest distance migrating bird which flies between Arctic breeding grounds and the Antarctic each year. माइग्रेशन यानी प्रवास। प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबी दूरी तय की जाती है एक नए जगह की तलाश में। ये हो सकता है कि मौसम परिवर्तन के कारण भी हो, या फिर कुछ जानवर जो है दूर दूर तक जाते हैं खाने या फिर अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। प्रवास का कई सारा कारण हो सकता है, जैसे कि जिस जगह पे जीव रह रहे हैं वहाँ का मौसम बदल जाना, या जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ पर खाने का ना मिलना, या हो सकता है कि मौसम जो कि पूरे साल में हमेशा अंतर करते ही रहता है, इसके कारण से भी प्रवास जरूरी हो जाता है। प्रवास जो होता है वो नियमित अंतराल के बाद भी हो सकता है, जैसे कि कैरिबू में आर्कटिक पंछियों का, जो कि ठंड के मौसम में दक्षिण छोर चले जाते हैं और गर्मियों के मौसम में वापस लौट आते हैं। खारे पानी से सैल्मन मछलियाँ ताजे पानी में आ जाती हैं ताकि वो अपने अंडे को दे सकें, और इन अंडों से निकले हुए जो मछलियाँ हैं, सैल्मन मछलियाँ, जब वो कुछ इंच तक बड़ी हो जाती हैं तो वो ताजे पानी से होते हुए खारे पानी में पहुंच जाती हैं। प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो समुद्र में रहने वाले सबसे छोटे पौधे हैं जो दिन के समय सतह पर, समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और रात के समय वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं ताकि उन्हें बहुत कम ही शिकारी ढूंढ पाए। जाड़े के समय साइबेरियन क्रेन्स या व्हाइट क्रेन्स वो भारत आ जाते हैं। व्हेल मछलियाँ जो होती हैं वो दक्षिणी या फिर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़कर गर्म क्षेत्र वाले समुद्र के हिस्से में आ जाते हैं। मोनार्क तितलियाँ जो होती हैं बहुत दूर प्रवास करती हैं, वो कनाडा से होते हुए मैक्सिको तक प्रवास करती है हर एक ठंड के मौसम में। आर्कटिक टर्न दुनिया में सबसे दूर प्रवास करने वाले पंछी हैं जो आर्कटिक प्रजनन भूमि से होते हुए अंटार्कटिक क्षेत्रों में हर एक साल प्रवास करते हैं।